Hello students. So in this lecture, before starting 11th standard syllabus, we'll just revise what you have studied in the 8th standard, 9th standard and 10th standard, and that portion is useful in the definitely in the 11th standard. So just we'll take the revision. Okay. So first of all, we'll take what is expansion formulas, expansion and what is factorization formulas. Okay. So see here. So expansion formulas, so this is first topic we can take, expansion and factorization formulas. So see here first formula a plus b bracket square. तो सबको मालूम है, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली यू माइट हैव स्टडीड दिस इन द स्टैंडर्ड 8th. ओके, व्हाट इज a plus b bracket square means what is that? A square plus twice ab plus b square. Okay, a plus b square means what? First term square, then what is 2 times of first term into second term, and plus what you are getting here, second term square. And remember, formulas means you must know from both the sides. If left hand side is given, you must know how to write the right hand side, and in case if right hand side is given, you must know how to write the left hand side. यानी दोनों इससे आपको फार्मूले आना चाहिए नहीं, ठीक है. अब देखो सेकंड फार्मूला है a minus b bracket square. A minus b bracket square, what is that? So this is what? A square minus twice ab plus b square. See here, if you compare these two formulas, here plus sign is given, all terms are positive. Here minus b is given, a minus b square is given. So here what you are getting, middle term negative. Terms are exactly same, but here this middle term is what is negative. So this is what a minus b bracket square formula. After this, a plus b plus c bracket square. Yes, a plus b plus c bracket square. What is? So we will get a square plus what is b square plus c square plus. Okay, and then after that what we will get here? See here, 2 times of what we will get here, a b plus. देखो यानी यहाँ पे a और b है तो 2 times of ab. After this 2 times of what is bc and plus 2 times of we can say a and c. देखो that is what? A plus b plus c bracket square formula. A square plus b square plus c square plus twice ab plus twice bc plus twice ac. Okay. After this a plus b bracket cube formula. A plus b bracket cube. Yes, that is what? A cube plus 3a square b plus 3ab square and plus what is b cube. That means we are getting first term cube, then plus 3 times of first term square into second term. After that plus 3 times of first term into second term square and plus second term cube. Means instead of here a and b, if any other term is given, you must know how to use this formula. Okay. After this a minus b bracket cube formula. A minus b bracket cube formula. What is that? A cube. देखो exactly same terms will be there, but what will get? A cube, yes, minus 3a square b, देखो ये term negative है, plus 3ab square and what will get here? Minus b cube. And in this case, if you observe, second term and last term negative and remaining terms are positive. And alternate sign, first term is positive, then negative, positive, negative, like this. ठीक है? तो a minus b bracket cube. In case suppose power is more than 3, we don't know any formula. So definitely that type of formulas we will study in the standard 11. Suppose here a plus b bracket to the power 4 is given, 5 is given, 6 is given. So this type of formulas, and for this one formula is there, that is called binomial expansion formula. So this we will study in the standard 11. So this formula is we know. After this here, what is
a square minus b square. Now this is what? Factorization formula, correct? A square minus b square, what will get here? A square, what is? You will get a minus b into a plus b. A square minus b square है तो a minus b into a plus b. If you want, you can write like this also, a plus b into a minus b also we can write. Okay, that way. And from if the right hand side is given, you must know how to write left side. A minus b, a plus b यानी अपोजिट साइंस अगर दिए होंगे ब्रैकेट में तो क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर. फॉर एग्जांपल सपोज इट इज गिवन x minus 2y into suppose here x plus 2y is given, and if you have to simplify this, so what will do? So here what will get? First term square and minus second term square. That means what will get here? X square minus 4y square. And you must know how to use formula from both sides. Okay. After this, a cube plus b cube. क्या है? a cube plus b cube means a plus b into a square minus ab plus b square. See here no twice ab, only ab. तो here a cube plus b cube है तो in the first bracket plus sign है and here second term is negative, and after this a cube minus b cube. A cube minus b cube, what will get? So in this case what is? We will get a minus b into, yes, a square plus ab plus b square. So see here, if you observe these two formulas, what is the difference on the right hand side? तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस साइन है, यहाँ पे देखो ये टर्म निगेटिव है, बट इनकेस अगर माइनस साइन दिया होगा तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस बी की टर्म है और यहाँ पे सभी टर्म क्या है? पॉजिटिव है. तो देखो ये फार्मूलेज है एक्सपांशन के हो गए यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ पे ये तीन फार्मूले क्या हो गए? फैक्टराइजेशन के. बराबर है. इसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर इस टाइप से इक्वेशन दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, एंड इफ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस, तो आपको मालूम है प्रोसीजर कैसे फाइंड करते हैं. आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. उसके बाद में क्या करते हैं अपन? उसके ऐसे फैक्टर फाइंड करते हैं कि उसका एडिशन क्या आना चाहिए? मिडल टर्म आना चाहिए. बराबर है. यानी जैसे अब यहाँ पे 6 है तो 6 के फैक्टर्स कौन से आएंगे? 2 और 3 आ जाएंगे, और एक 1 और 6 आएंगे. अब इसमें से कौन से फैक्टर लेंगे आप लोग? डेफिनेटली 2 इंटू 3, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा और इसका एडिशन कितना आएगा? मिडल टर्म. तो अगर आप ये इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू, चाहे तो 0 दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वैसे. हाँ, तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से x कॉमन लिए तो यू विल गेट x प्लस 2, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा? अगेन x प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0. दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर? x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है देखो यहाँ पे, और इनटू क्या रहेगा यहाँ पे? x प्लस 3 रहेगा इज इक्वल टू 0. अगर 0 दिया होगा तो 0 लेंगे, अगर नहीं दिया होगा, ओनली अगर आपको इस तरह से फैक्टर फाइंड करने के लिए बोला है तो ये हो गए इसके फैक्टर्स x प्लस 2 x प्लस 3. नहीं देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. मगर अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये फॉर्म में दिया होगा तो फैक्टर आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये एक्सपांशन और फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज हो गए. अब उसके बाद में देखो आप सेकंड थिंग क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इसको आप बोल सकते हैं इंडाइसेस. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और वी कैन से इंडाइसेस. ठीक है. अब आपको मालूम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो देखो अब सपोज यहाँ पे ऐसा अगर दिया होगा a टू द पावर 4 है, तो आपको मालूम है यहाँ पे ये जो टर्म है, ये जो a है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो है दिया है क्या है? ऊपर दिया है ना, इसको बोलेंगे व्हाट इज पावर. इंडेक्स, पावर बोलो, इंडेक्स बोलो, या इसको एक्सपोनेंट करके भी बोल सकते हैं. बराबर है. यानी अगर इस तरह से दिया होगा a टू द पावर m अगर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे a क्या है? बेस है, एंड m इज नथिंग बट व्हाट इज इंडेक्स, और वी कैन से पावर बोल सकते हैं, या दैट इज व्हाट? एक्सपोनेंट. ओके. तो सी अब सपोज हियर फर्स्ट
Suppose here a to the power m is given. What is the meaning of this one? आपको मालूम है, suppose here a to the power 1 is given, what will get? You have to just multiply a only one times. A to the power 1 means what will get? A. If it is given a to the power 2, a to the power 2 means what will do? We'll multiply a 2 times. If it is given a to the power 3, that means we'll multiply what is a 3 times. Suppose a to the power 10 is given, so what will do? You will multiply a definitely 10 times. अब यहाँ पे क्या दिया है? a to the power m दिया है. इसका मतलब what you have to do? You have to multiply a what is m times. That means what will do here? a into dash dash dash. What we can say? m times. ठीक है. तो यहाँ पे a यानी डेफिनेटली क्या बोलेंगे? बेस है और m यानी क्या है? इंडेक्स है. तो देखो ये हो गया फर्स्ट. उसके बाद में सेकंड. Now suppose here a to the power minus m is given. क्या आएगा? ऐसा आएगा क्या? माइनस ए इंटू माइनस ए ऐसा आएगा क्या? नहीं आएगा. क्या करना पड़ता है यहाँ पे? पहले आपको इंडेक्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा. अब इसको पॉजिटिव करना होगा इंडेक्स को, तो क्या आता है? ये 1 अपॉन क्या आता है? a टू द पावर m. देखो यानी क्या है? निगेटिव पावर है, और अगर आपको पॉजिटिव करना है तो वो टर्म कहाँ पे आ जाएगी? डिनोमिनेटर में. 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर m. एंड आफ्टर दिस इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 अपॉन. इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इंटू डैश 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 m टाइम्स. देखो यानी वेन एवर पावर इज निगेटिव you have to make it always positive. And for example here 2 to the power minus 3 is given, and if you have to simplify this, तो इसकी वैल्यू -8 आएंगी क्या? नहीं आएंगी. -6 आएंगी क्या? वो भी नहीं आएंगी. क्या करना पड़ेगा आपको? पहले इसको 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 लिखना पड़ेगा, और 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 कितना होता है? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू अगेन 2 यानी 8, यानी ये आ जाएगा 1/8. इन केस अगर टर्म इज गिवन लाइक दिस, 1 अपॉन 3 टू द पावर -2 इज गिवन, व्हाट विल गेट? अब इसको सिंप्लीफाई करना है. क्या करेंगे? अब देखो इसका पावर निगेटिव, तो इसको क्या करना? टर्म डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा आपको. यानी क्या करेंगे अपन? 3 स्क्वायर आ जाएंगे ये. यानी मतलब क्लियर है कि अगर टर्म न्यूमरेटर में दी होंगी, उसको अगर आप डिनोमिनेटर में लेते होंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? पावर का साइन चेंज होगा. देखो निगेटिव होगा, डिनोमिनेटर में ले तो पॉजिटिव, नेचुरली डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर होगा, और उसको अगर आपने न्यूमरेटर लिया तो साइन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे. तो इसलिए ये 1/3 टू द पावर -2 है, तो इसको 3 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब ही क्या हो जाएगा? ये 9. 3 स्क्वायर यानी 9. ठीक है. तो इसलिए याद रखना है कि निगेटिव पावर अगर रहा तो उसको क्या करना है? पॉजिटिव करना है. अगर वो टर्म निगेटिव पावर न्यूमरेटर में होगा तो पहले टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन लिखना पड़ेगा. और अगर टर्म डिनोमिनेटर में होंगी निगेटिव पावर वाली, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद में देखो थर्ड, सपोज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर, अगेन a टू द पावर विल टेक a टू द पावर n है. a to the power m into a to the power n, and I see here base is same. If the base is same, what we can do? We can add the power, means you will get a to the power m plus n. देखो यानी बेस अगर सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं? पावर को ऐड कर सकते. बेस एक बार लिखना है, और ये पावर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडिशन हो जाएगा. इफ देयर इज व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, सपोज इट इज गिवन a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n. देखो a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n है, व्हाट विल गेट? तो एक तो ऐसा लिख सकते हैं a to the power आप m माइनस n लिख सकते हैं. अब यहाँ पे 2 रिजल्ट है. इफ m इज ग्रेटर देन n, यानी अगर न्यूमरेटर का पावर बड़ा है तो ये टर्म को ऊपर लेना है. और आपको पता है मैंने, अगर टर्म को अगर आप ऊपर लेंगे तो उसका पावर निगेटिव होगा, तो माइनस आ रहा है. a टू द पावर व्हाट इज? देखो यानी डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा. अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन क्या आ जाएगा? a टू द पावर n माइनस m इफ व्हाट इज? n इज ग्रेटर देन n. यानी अगर डिनोमिनेटर का पावर बड़ा है
तो क्या करेंगे अपन, इसको टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज हियर a टू द पावर 5 है डिवाइडेड बाय a टू द पावर 3 है। देखो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करूंगा मैं, a टू द पावर 5 माइनस 3, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, a टू द पावर 2, a स्क्वायर आ जाएगा। बट इन केस अगर ये ऐसा दिया है उल्टा, a टू द पावर 3 डिवाइड बाय a टू द पावर 5, तो ये केस में आप क्या कर सकते हैं, ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका पावर क्या है, न्यूमरेटर के पावर से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 1/a टू द पावर 5 माइनस 3, यानी आप डायरेक्ट लिख सकते a टू द पावर क्या 5 आ जाएगा और माइनस 3, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a स्क्वायर। ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्यों अलग अलग फार्मूला यूज करना दोनों के लिए। अगर आपने सेम फार्मूला यूज किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने इसको ऐसा लिखा सपोज a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 5 है, अगर आपको लगा कि नहीं हमको ये याद ही नहीं रखना है, अपने को यही फार्मूला यूज करना है, कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आ जाएगा, a टू द पावर 3 माइनस 5 आ जाएंगे ये, यानी क्या हो जाएगा ये a टू द पावर क्या हो जाएगा -2। ठीक है। और मैंने अभी बताया था कि पावर अगर निगेटिव है तो उसको क्या कर लेना, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा ये 1 हो जाएगा a टू द पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो आंसर सेम ही आता है, और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो क्या होता है, आंसर सेम आना ही है, एग्जैक्ट रहता है आंसर। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेथड सीखे तो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे यहाँ पे, पर्टिकुलरली अलजेब्रा में तो नहीं आता है ना। ठीक है, तो देखो यानी कैसे भी कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब उसके बाद में फिफ्थ है a टू द पावर m, और इसका पावर अगर n दिया है a टू द पावर m टू द पावर n, तो क्या जाएंगे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a टू द पावर n टू द पावर m, एंड दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट a टू द पावर mn। nm लिखो या mn लिखो, एक ही बात है। यानी अगर ऐसा दिया होगा 2 टू द पावर 3 और टू द पावर सपोज अगेन यहाँ पे 2 दिया है, इस तरह से दिया है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a टू द पावर 2 टू द पावर 3। क्या किया मैंने, ये पावर को इंटरचेंज किया, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 6, ऐसे आ रहा है। अब देखो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी। देख सकते हैं आप, क्या करेंगे 2 क्यूब यानी कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यानी क्या होता है 64। अब यहाँ पे भी देखो क्या जाएगा 2, यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी 4 टू द पावर 3, देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 यानी 16 इंटू 4 64। अब ये 2 टू द पावर 6, ये भी आप देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स इफ यू मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, बाद में 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 यानी 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64। आंसर सेम आता है, इसीलिए ये रिजल्ट आप पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो ये सपोज अगर ऐसा दिया होगा a इंटू बी, ब्रैकेट का पावर अगर m दिया है, ब्रैकेट का पावर m दिया है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, यानी पावर को आप क्या कर सकते हैं, a का भी पावर ले सकते हैं इंटू बी का पावर m आ जाएगा। यानी अगर ये ऐसा दिया होगा 2 इंटू 3 टू द पावर सपोज यहाँ पे 2 है, वेरीफाई कर सकते हैं आप इजीली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, देखो इसका भी पावर 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा। अब देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम आती कि नहीं आती, आएंगे क्या आएगा 2 इंटू 3 यानी 6 स्क्वायर यानी क्या होता है 36, ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 9 36। देखो यानी आप इस तरह से अगर टर्म दी होंगी तो आप क्या कर सकते हैं, a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकते हैं। और अगर सपोज ये ऐसा दिया होगा फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 है इंटू 5 टू द पावर 3 है, देखो दोनों का पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 टू द पावर 3। फार्मूले आप लोगों को क्या दोनों साइड से यूज करते आना चाहिए ना। अगर ये दो टर्म का प्रोडक्ट दिया है वहाँ पे और पावर दोनों का सेम है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, ए और बी को एक ब्रैकेट में लेके ब्रैकेट का पावर जो दिया होगा वो लिख सकते हैं ना। ठीक है।
उसी तरह से देखो ये a डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, डिवीजन है। अब क्या जाएंगे यहाँ पे a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय व्हाट इज b टू द पावर m। तो डेफिनेटली यानी दो टर्म का पावर सेम है और डिवीजन दिया होगा तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डिवीजन a बाय b और ब्रैकेट का पावर m। लेफ्ट साइड है तो राइट साइड लिख सकते हैं, राइट साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। और उसके बाद में 8th है a टू द पावर 0, व्हाट a टू द पावर 0 कितना आएगा? सबको मालूम है कि a टू द पावर 0 क्या लिखते हैं अपन? 1 लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं 1 क्यों लिखते हैं? अब आपको ये मालूम है ना a का पावर 1 है तो क्या लिखते हैं अपन? a लिखते हैं। a का पावर 2 है तो क्या करते हैं अपन? 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। a का पावर 3 है तो क्या करते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना। फिर a का पावर 0 है तो 0 बार मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। करते क्या? 0 बार मल्टीप्लाई क्या आता है? 0, फिर तो 0 आना चाहिए। 0 से मल्टीप्लाई की किसको भी तो 0 आएगा, नहीं आता, 1 आ रहा। क्यों आता है? अब इसका रीज़न अब अपन इसको ऐसा याद रखते हैं कि एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब मगर क्यों? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसका रीज़न है ना, देखो एक्चुअली अगर ये ऐसा दिया होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, क्या आएगा? ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं आप। पावर दोनों इक्वल है तो कहीं भी लो, अपन न्यूमरेटर में लेते हैं, क्या हो जाएगा? a टू द पावर ये आ जाएगा m माइनस m, यानी इसका मतलब a टू द पावर क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। यानी इसका मतलब क्या है कि a का पावर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर डिफरेंस ऑफ द सेम नंबर। अब देखो आपको मालूम है कि ये नंबर और ये सेम है, a टू द पावर m, इसको कट कर सकते हैं, यानी क्या आ जाएगा? 1। यानी एक्चुअली क्या है कि a टू द पावर 0 यानी क्या है? एक सिंबल है, ठीक है। तो इसीलिए उसको अपन इस तरह से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो अब ये लॉज ऑफ इंडासेस हो गए, एक्सपांशन एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूले लिए मैंने, उसके बाद में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लिए। सब लोगों ने ये फार्मूलेज यानी आप लोगों ने शायद 8, 9, 10 समवेयर यू आर स्टडीड दैट, ठीक है। तो आई थिंक टुडे विल स्टॉप हियर, पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक फॉर्मूलेज ऑफ द मेंसुरेशन। एरिया के फॉर्मूले लेंगे, उसके बाद में वॉल्यूम के फॉर्मूलेज है, सरफेस एरिया। तो एक बार उसको थोड़ा रिवाइज कर लो, आप लोग 10 का किताब निकालो अभी उसमें, ठीक है। एंड दैट फॉर्मूलेज आर गिवन इन द स्टेट बोर्ड एज वेल एज इन द CBSE ऑल्सो। तो वो एक बार पढ़ के आओ, कल मैं उसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। रिवाइज करेंगे अपन उसको, ठीक है। चलो।